Reserve Bank of India has barred New India cooperative banks from granting or renewing loans, accepting fresh deposits, make investment, disbursing any payment for its liabilities or selling any of its properties due to supervisory concerns emanating from the recent material developments in the bank, and of course to protect the interests of depositors of the bank as well. Now, customers are at the moment in distress as their hard-earned money is stuck. Some, in fact, have deposited over 1 lakh rupees, others have their entire retirement savings of 20 lakh rupees, while several housing societies have around 40 to 50 lakh rupees trapped in this particular bank. In fact, according to the Reserve Bank of India regulations, depositors can now withdraw only up to 5 lakh from their respective accounts and access funds from their bank lockers. दिक्कत है यानी हमारा अकाउंट ही 1982 से इतना भरोसा था बैंक के ऊपर, अभी ये बैंक ही उड़ गए तो हम बड़ी बैंक पे भरोसा कैसा करेंगे? क्यों रखें उधर भी पैसा? आप मेरी बात समझो, क्योंकि इतनी छोटी बैंक हम लोग को रात को 7 बजे जब जी न्यूज़ पे देखते हैं तब मालूम पड़ता है कि भाई ये उड़ गई है। तो बाकी पब्लिक का पैसा हम लोग तो चलो थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे, जो गरीब आदमी बेचारा जाएगा कहाँ पर? वो हम लोग, मेरा यहीं पे शॉप है, मैं छाया मेडिकल कर दुकान चलाता था, अभी बंद हो गई, लेकिन हम यहाँ मैनेजर हमारे पास आए थे बैंक अकाउंट के लिए, इतने हम लोग जुने पहचानते हैं यहाँ पर। पता नहीं था क्या, कॉल भी प्ले कर दिया है, कॉल भी प्ले किया, पता था ना इन लोगों को, कॉल भी प्ले किया है, इसका 60,000 मेरा 10,000, क्यों प्ले किया? बोलने का ना था, ऐसा है। मैसेज भी नहीं दिया, अभी मैसेज देखा तो सुबह 9 बजे मैसेज डाला है, ये क्या है? तो कल से ही रात से ही सबको न्यूज़ आया है, किसी को भी कुछ भी ट्रांजैक्शन करने का भी मौका नहीं मिला है। अभी फिलहाल लॉकर एटलीस्ट ये लोग ऑपरेट करने दे रहे हैं, बट उसके लिए भी जैसे आप देख रहे हैं बहुत बड़ा लाइन है। तो आप लाइन में? मैं तो अभी 1 घंटा और 1.5 घंटा हो गया है ऑलरेडी, बट काफ़ी लोग सुबह से खड़े हैं लाइन में। तो एक प्रॉब्लम वो भी हो रही है कि वो लोग बता भी नहीं रहे हैं कि वो लोग कितने दिन कैसे ऑपरेट करने देंगे। अगर एक टाइमलाइन गाइडलाइन दिया जाए तो लोगों को समझेगा। So we have heard the grievances of people waiting outside of the bank for some sort of clarification coming in. The main question is, if the bank knew it before, why did they not notify the users? And according to the RBI regulations, the depositors can now only withdraw up to 5 lakh rupees from their respective accounts and also access the funds from their bank lockers. What we heard from one of the person standing outside of the bank in that massive queue said that now they are allowed to access their lockers, but they don't know how to proceed further with this entire chaos that broke out early this morning. In fact, we are looking at long queues of people which were seen outside of the Mumbai-based New India Cooperative Bank as worried customers want to withdraw their money after the RBI on Thursday imposed several restrictions, including on the withdrawal of funds by depositors amid the supervisory concerns of the users. Now, account holders have gathered outside of these banks, specifically in Andheri. Customers are confused about how do they go about this entire scenario, how do they proceed in terms of withdrawing their money, because now they have been given the access to their lockers, but they have not been notified further with regards to the money above 5 lakh of rupees. As of now, according to the latest regulations coming in from the RBI, depositors can only withdraw up to 5 lakh rupees. But what about those who have deposited more than 5 lakh in their accounts? The customers are in distress. They are all disturbed. They are saying that if the bank knew it beforehand, why were the notifications not sent across? Why did we have to wait for the news channels to break this particular notification to us? In fact, some have deposits around 1 lakh rupees, but other have their entire retirement savings of around rupees 20 lakh. We are learning that there are several housing societies that have around 40 to 50 lakhs trapped in this particular bank. And what we are looking through the visual is a huge queue
of people standing outside of the bank trying to get an access, trying to get a word and clarification from the authorities about how to proceed in this entire situation. Customers are confused about when they will get their hard-earned money. Some, in fact, are saying that the bank is not responding to their queries, and even its customer support services applications are not even functioning at the moment. Most of the people have gathered outside of the bank are senior citizen. If we could take a look at the voices coming in from the ground, in fact through our reporter who is currently there outside of the bank, he spoke to multiple people. They said that we did not know what to do, and in fact the notification came across through a news channel. Since morning we are standing outside of the bank in a queue. Authorities have not answered our calls. Authorities have not given out any sort of clarity in this particular situation. Bank officials have given coupons to those who are at the moment standing outside of the queue, and according to the bank officials, customers in fact can use these coupons to access their lockers. Now the main question is, if according to the latest RBI regulations, the depositors can only withdraw up to 5 lakh rupees from their respective accounts and also access their funds from their bank lockers, what about those who have deposited money more than 5 lakh rupees? Let's listen into one of the reports, in fact coming in straight from our ground through our reporter. देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस बैंक के अंदर कुछ ऐसी फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज हुई हैं जिसके कारण ये आरबीआई ने निर्णय लिया है। आपको पता होगा, अगर लोन देते हैं तो लोन की रिकवरी समय पर होनी चाहिए। अगर रिकवरी समय पर नहीं होती तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स उसे गिना जाता है। ऐसी कुछ टेक्निकल बातों के कारण आरबीआई ने इस बैंक के कामकाज पर रोक लगाई है, जिसके बाद यहाँ पर पैनिक हो गया है और आरबीआई के इस डायरेक्शन के बाद 5 लाख रुपए तक का विड्रॉल किया जा सकता है। लेकिन ये 5 लाख रुपए तक का विड्रॉल कब किया जाएगा, इसकी कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। बैंक के जो ग्राहक है वो बहुत ज्यादा पैनिक है। आप बताएं, आपका कितना पैसा है? सर करीब 8.5 लाख रुपया मेरा बैंक में है। अभी यहाँ से कोई भी रिक्वायरमेंट हमको नहीं मिल रहा न्यूज। खाली लॉकर की फैसिलिटी अभी तक चालू किया है, बाकी करंट सेविंग के लिए कुछ भी नहीं किया है। और आपके जो ईएमआई वगैरह हैं वो कैसे जाएंगे? अभी वही चीज नहीं समझ में आ रहा है, बताने को भी तैयार नहीं हो रहा। अभी खाली बोल रहे हैं लॉकर के लिए है। लॉकर के लिए तो बाकी लोगों के लिए तो बताना चाहिए, जिसका करंट का सेविंग का पैसा वो तो अभी थर्ड पार्टी को चेक देके बैठे, वो चेक कैसे क्लियरिंग होगा? चेक रिटर्न होगा तो चेक रिटर्न का बाउंस का चार्जेस लगाएंगे। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई यहाँ से इंक्वायरी नहीं मिल रही है। आपको बैंक वालों ने कुछ बताया मैडम? कुछ नहीं बताया हमें। आपका क्या करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है? सेविंग अकाउंट है। कितना पैसा है आपका? है 2 लाख जितना है। 2 लाख है, तो उसके लिए कुछ बोला बैंक वालों ने? कुछ भी नहीं, अभी पता चला है हम लोग को। आप बताएं। बैंक वाले है ही नहीं, है तो वो झगड़ा होता था इसलिए भाग गए। कोई पब्लिक को जवाब नहीं दे रही है, पुलिस आके खड़ी है। हमारे सेविंग अकाउंट में बहुत सारा पैसा है, 3 लाख रुपया, 3 लाख रुपया है और एफडी में अलग है। एफडी में अलग है। हाँ, निकालने का कोई चांस लग रहा है? कोई चांस नहीं, कोई चांस, आई डोंट नो। बिल्कुल, आप बताएं मैडम। मेरा भी 3 लाख है, हस्बैंड का सीनियर सिटी का। वो अभी कभी मिलेगा क्या मालूम नहीं। अभी आरडी में क्या है, वो एफडी मध्ये है, मिलेगा क्या? आरडी में एफडी आपने कन्वर्ट कर दिया है? हाँ, आपको मिलेगा, आरबीआई की तरफ से मिलेगा आपको। आपका कितना है मैडम? ज़्यादा अमाउंट अभी कोई आश्वासन नहीं दे रहा है, कोई लिखित में कुछ नहीं बोलने को राजी है कि सेविंग्स अकाउंट का पैसा कब मिलेगा। एफडी का तो मिल जाता है, पर सेविंग्स का क्या मिलेगा? सेविंग्स में भी अमाउंट है हमारा, सेविंग्स का क्या, कोई अश्योरेंस नहीं देने को राजी। बहुत जूने ग्राहक है हम, आज के नहीं है, बहुत जूने ग्राहक है, पर अभी ये लोग अश्योरेंस नहीं दे रहे कि सेविंग्स अकाउंट का क्या होगा। बिल्कुल, आप बताएं फिर अभी क्या आगे का है बैंक? आगे का कोई अपडेट अभी तक इनके पास से नहीं है। खाली आज के लिए लॉकर का चालू किए, लॉकर में जिसका जो भी डॉक्यूमेंट्स गहना गोल्ड रखा बस उसके लिए चालू किए। बाकी सेविंग का करंट के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। मजबूरी में जाके अभी मैं फॉर्म लेके आ रहा दूसरे बैंक का अकाउंट ओपन करने के लिए। दूसरे बैंक में अकाउंट ओपन करने जा रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं कि ये दूसरी बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अपना अकाउंट ओपन करने जा रहे हैं, क्योंकि ये बैंक बंद हो गई है। इनके करीब 6-7 लाख रुपए अटके हुए हैं, इनका ईएमआई सब अटका हुआ है। ऐसे बहुत लोग हैं जो पैनिक है, परेशान हैं। बच्चे यहाँ पर है, बुजुर्ग यहाँ पर। आपका भी अकाउंट इस बैंक में है? आपका अकाउंट है इस बैंक में? तो यहाँ पर और भी लोग हैं जो यहाँ पर आए हुए। आपका अकाउंट है? मेरे लड़के का अकाउंट है। लड़की का है? 98 रुपये अभी LIC का आया था वो, अभी 4 दिन पूरे। अभी उसका पैसा रिकॉर्ड गया अंदर। का मैच्योरिटी आया था? हाँ, कितना आया था? 98,000। हाँ, तो वो भी अटक गया अंदर। अभी तो कितने साल से LIC भर रहे थे आप?
ये 15 साल हुआ ना। तो 15 साल से LIC भर रहे थे और इनका LIC का 1 लाख रुपया मैच्योरिटी आया था 98,000 रुपीज, वो भी इस न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में अटक गया है। सब लोग परेशान हैं। कुछ ऐसे भी ग्राहक हमको मिले जो बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैनिक है। उन किसी की बिटिया के एजुकेशन का पैसा, किसी के बेटे की नौकरी का पैसा, किसी के पति के रिटायरमेंट का पैसा, सारा पैसा इस बैंक में अटक गया है। कोई बुजुर्ग यहाँ पर आके मूर्छित हो जा रहा है, बेहोश हो जा रहा है, उसे पानी पिलाना पड़ रहा है। यहाँ पर पूरा क्योस का माहौल है और कोशिश बैंक वालों की यही है कि लोगों को समझाएं। पुलिस बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद है। जी बिल्कुल, बैंक अथॉरिटी से हमारी बातचीत हुई है। अंदर का जो मेन गेट है शटर बंद कर दिया गया है। बाहर RBI का नोटिस बोर्ड लगाया गया है जहां पर साफ तौर पर लिखा गया है कि इस बैंक के कामकाज को रोका गया है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि बाहर बैंक के गेट पर जो है वो पुलिस बड़ी संख्या में मौजूद है। बैंक के कर्मचारी किसी तरह से अंदर से बाहर आ रहे हैं और बाहर से अंदर जा रहे हैं। लोगों में बहुत ज्यादा पैनिक है, लोग गुस्से में हैं। लोग बैंक के ब्रांच के अंदर जाना चाहते हैं और ब्रांच के अंदर जाने के लिए लोग परेशान हैं। लोगों को टोकन दिया गया है, जो लॉकर जिसका है उसके लॉकर का एक्सेस उसको दिया जा रहा है, मगर जिसके पास लॉकर नहीं है वो भी अंदर जाना चाह रहा है, जैसे FD वाले, RD वाले, लेकिन उनको अभी अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस आ गई है और यही हालत जो है मुंबई महाराष्ट्र में न्यू इंडिया बैंक के जितने भी ब्रांचेस हैं सब जगह हो गई है। सभी कस्टमर जो है वो पैनिक है, सभी कस्टमर परेशान हैं। कोशिश कस्टमर की ये है कि उनको जवाब मिले कि उनके लाखों रुपए उन्हें कब मिलेंगे। जी जयप्रकाश, और एक बात हमें बताइए कि अभी तक देखिए इस पूरे मामले में जांच का जो दायरा है वो RBI तक सीमित है। इसमें मुंबई पुलिस की जांच का दायरा तब आएगा जब कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होगी, लेकिन अभी RBI इस मामले में जांच कर रही है। RBI ने फिलहाल कामकाज पर बैंक के रोक लगा दी है और बड़ी बात यह है कि RBI स्टेप बाय स्टेप इस पूरे मामले में जो बैंक में लोगों का पैसा फंसा हुआ है उसे लोगों को देने की कवायद में जुटी हुई है। पहले लॉकर का एक्सेस दिया जाएगा, उसके बाद जो लोगों के FDs हैं उसमें 5 लाख रुपए तक की FD उन्हें तोड़ने की अनुमति दी जाएगी और उसके बाद रिकरिंग डिपॉजिट यानी सेविंग डिपॉजिट का नंबर आएगा। तो ये पूरे RBI के जुरिडिक्शन में है। RBI इस बैंक को किसी और बैंक में मर्ज भी कर सकती है, जैसे पहले बैंकों में हमने देखा हुआ है, PMC बैंक, यूनाइटेड बैंक, RBL बैंकों में मर्जिंग हुई है, तो यहाँ भी मर्जिंग हो सकती है। लेकिन आगे क्या होगा ये RBI के डायरेक्शन पर निर्भर करता है। जी, और बैंक अथॉरिटीज ने अभी कोई डिटेल्स दी है कि जो सेविंग्स अकाउंट है उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि अभी विथड्रॉल पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया है RBI ने, तो उस पैसे का जिन लोगों का सेविंग्स अकाउंट है इस बैंक में वो लोग अपने पैसे को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, उसके बारे में कोई डायरेक्शंस अभी तक या गाइडलाइंस कुछ दिया है बैंक अथॉरिटीज ने? देखिए मैं जैसे आपको बता रहा हूं कि FD और सेविंग का कोई एक्सेस की जानकारी अब तक नहीं है। यही वजह है कि क्योस है यहाँ पर, ग्राहकों के बीच में पुलिस को बीच बचाव करना पड़ रहा है। बैंक के अधिकारी डरे हुए हैं, कर्मचारी डरे हुए हैं कि कहीं उन पर कोई ग्राहकों का गुस्सा ना आ पड़े, ग्राहकों का गुस्सा उनके ऊपर ना आ पड़े। और ये जो ग्राहक है वो साफ तौर पर ये कहना चाह रहे हैं कि उनका पैसा जो अंदर फंसा हुआ है वो पैसा उनको समय पर मिल जाए। लेकिन पहले जैसे मैंने आपको बताया कि जो एक्सेस है वो एक्सेस फिलहाल लॉकर्स का है और लॉकर के एक्सेस के अलावा अभी और दूसरा कोई एक्सेस नहीं दिया जा रहा है। जयप्रकाश, अभी बैंक के अंदर घुसने के लिए परमिशन दिया गया है, क्योंकि हम पुलिस की डिप्लॉयमेंट काफ़ी भारी मात्रा में देख रहे हैं वहाँ पे और लोगों की भीड़ भी काफ़ी इकट्ठा हो गई है। वहाँ के सिचुएशन के बारे में भी थोड़ी हमें अगर जानकारी मिले तो। देखिए मैं आपको बाहर के सिचुएशन के विजुअल लगातार दिखा रहा हूं। अगर आप देख सकें तो यहाँ पर लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा क्योस, बहुत ज़्यादा टेंशन, बहुत ज़्यादा जो है लोगों में गुस्सा है, रोष है। और इसका कारण है कि लोगों को ये नहीं पता चल पा रहा है कि उनकी हार्ड अर्न मनी, उनका मेहनत का कमाया हुआ पैसा उन्हें कब मिलेगा। और इसी वजह से पुलिस को यहाँ पर बड़ी संख्या में डिप्लॉयड होना पड़ रहा है। पुलिस लोगों से जो है 1-to-1 हो रही है
पुलिस लोगों को समझा रही है। अगर यहाँ पर पुलिस नहीं होती तो आप समझ सकते हैं कि लोग बैंक का जो गेट है वो तोड़ के भी अंदर घुस जाते, क्योंकि लोगों को अपना पैसा चाहिए और ये हार्ड एंड मनी जो उनका है वो किसी भी तरह से वो लेना चाह रहे हैं, और इसकी वजह से ये हार्ड एंड मनी को लेने के लिए लोग ज़्यादा परेशान हैं। इसके लिए यहाँ पर लोगों में ज़्यादा गुस्सा है, लोगों में ज़्यादा पैनिक है और लोग गेट छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं।